Good morning, बच्चों. We will do the new chapter in the costing account 2 बच्चों. In account 2 के बच्चों costing till now बच्चों what we have finished yet till now in the account 1 बच्चों we have completed 2 chapters which are the investment and internal reconstruction. Investment and internal reconstruction chapter we have completed बच्चों. In the costing बच्चों we did the 2 chapter again. Material costing and cost sheet. Material costing and cost sheet. Okay बच्चों. Now बच्चों material costing we did that. उसके बाद next chapter बच्चों labor costing. Material costing में बच्चों all the information or all the things related to materials. Then labor costing बच्चों all the related items with the labor point of view. तो labor का आपको देखना बच्चों. And then overheads मतलब बच्चों all the expense है बच्चों. Actually 3 सब head chapters है बच्चों. Material cost, labor cost, overhead सब chapters है बच्चों. Okay? और इन तीनों को combine करके सब chapter किसके नाम से cost sheet होता है. तो fortunately बोलो बच्चों या unfortunately हम लोगों ने ये chapter पहले complete कर लिया. तो all three का combine करके जो chapter था बच्चों सबसे बड़ा chapter था that we have finished. अब बच्चों मान लो टाइम पास वाला chapter बच गया. तो मटेरियल कॉस्टिंग हमने देखा बच्चों. इन्वेंटरी ज़्यादा क्या था बच्चों ईओक्यू का एक फॉर्मूला था बच्चों. फिर फीफो एंड लेफो मेथड था बच्चों. फीफो मेथड वेटेज एवरेज मेथड और फिर क्या था फिर स्टॉक लेवल की बच्चों. ईओक्यू का एक फॉर्मूला हमने किया बच्चों. फिर फीफो एंड वेटेज एवरेज दिया बच्चों एंड देन स्टॉक लेवल का हमने किया बच्चों. थ्री पॉइंट था बच्चों मतलब कॉस्टिंग में. वैसे बच्चों लेबर कॉस्टिंग में भी बहुत सारे हैं लेकिन लेबर कॉस्टिंग का फॉर्मूला बहुत है बच्चों. ओके दैट यू हैव टू कंसीडर दैट. You will see in this chapter बच्चों. अब फिर उसके बाद बच्चों ओवरहेड्स रहेगा और एक चैप्टर और है बच्चों रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन that is the other chapter बच्चों. So after labor cost we have only 2 left, overheads and reconciliation बच्चों. क्या बच्चों? So let's concentrate on the labor cost बच्चों. Then बच्चों the theory part. Labor cost, labor wages, salary, you know, all the wages and salary, wages and salary. Now जब तो wages हम लोग labor के लिए यूज करते हो और salary मतलब staff, बच्चों. But in the labor costing method you will take the all wages and salary both बच्चों. So labor cost means the basic principle of calculating the wages and the salary of a particular worker or staff or the employee. Yes. In labor cost, we will calculate the salary as well as wages. Don't think that the labor was the only wages. We will include all the staff salary also, all employee salary also. Okay ना? तो labor costing में बच्चों नाम दिया labor costing तो ऐसा मत सोचना खाली खाली wages से आएगा बच्चों. ये ना बच्चों wages salary में फर्क. Wages बच्चों labor के लिए होता है और salary staff employees के लिए होता है. Labor cost में बच्चों we will include both salary as well as wages. Okay. So what is labor cost? Labor cost means the basic principle of calculating the total wages and salary of particular worker and particular employee. Each and every employee and worker बच्चों how to calculate salary, how to calculate wages. कौन इस चैप्टर में पढ़ने वाले. और लेवल का सैलरी कैसे डिसाइड होता रहेगा, कैसे लेवल का सैलरी कैलकुलेट होता रहेगा, हम लोग वेजेस कैसे डिसाइड होता रहेगा, ऑल विल कैलकुलेट. तो there are different terms of time keeping. Time keeping means the keeping a record of attendance of a worker and the time spent by them in the actual work, idle work and the OT work. So there are 3 words. Time keeping. अभी होता क्या बच्चों, एक तो बच्चों कल हम बोलते हैं अटेंडेंस. क्या बच्चों वन इज अटेंडेंस. अब अटेंडेंस वर्ड क्या शो करता है, whether you are present or absent. Attendance just showing the presentity or absentee है बच्चों. Whether you are absent or whether you are present, that only showing the attendance part. But when you see the time keeping बच्चों उसमें बहुत सारी चीजें बच्चों. टाइम कीपिंग में बच्चों
It is a detailed information of employees who spend number of hours for actual work, idle time and OT. अब एक क्या है बच्चों में बताता हूँ टाइम कीपिंग. What is the time keeping? The time keeping is detailed information of particular employees बच्चों who spend the number of hours for actual work. अब जैसे बच्चों जो लोग कॉलेज में या स्कूल में बच्चों 35 मिनट का लेक्चर बच्चों, क्या बच्चों इट इज 35 मिनट लुक लाइक बच्चों, बट आप सोचो बच्चों तो 35 मिनट में बेल बन ऐसा होता है कि बेल बजा इमीडिएटली और इमीडिएटली सर आ गए. इज दैट? नो, पॉसिबल नहीं है बच्चों. ऊपर से मान लो बच्चों का पहला प्रोफेसर का लेक्चर फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों और फिर सेकंड लेक्चर उनका फोर्थ फ्लोर पे बच्चों, तो फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाना पड़ेगा बच्चों. तो आपका बेल बजने के बाद बच्चों तो 5 मिनट वेस्ट हो गया बच्चों. तो 35 मिनट के बच्चों उसके बाद आ रहे हैं बच्चों को सेटल डाउन होने में टाइम लगता है बच्चों, फिर पढ़ाई चालू है. सो आउट ऑफ 35 मिनट बच्चों ओनली 20 मिनट पढ़ाई होगा, बाकी का 15 मिनट तो ऐसे वेस्ट का टाइम. तो ऐसे बच्चों हाउ मच नंबर आवर्स यू हैव स्पेंड ऑन द एक्चुअल वर्क, आपके काम का कितना वर्क एक्सपेंड किया बच्चों. अब बोलते बच्चों 8 घंटे की ड्यूटी, ठीक है 8 घंटा वर्कर एकदम काम करते रहता है. 8 घंटे की ड्यूटी बोलते बच्चों तो वर्कर के 8 घंटा पूरा काम करता है? नो, ये 8 आवर्स में बच्चों लेट टेक द 7 आवर बच्चों उसका वर्क है, ये एक्चुअल वर्क. 1 घंटे में बच्चों उसका लंच टाइम है बच्चों 40 मिनट का लंच टाइम, 20 मिनट का टी टाइम बच्चों. तो ये 1 घंटा कैसे वेस्ट करें बच्चों, दैट ये 1 घंटे बच्चों आइडल टाइम. क्या बोलते हैं बच्चों आइडल टाइम. आइडल टाइम मतलब बच्चों लुक लाइक कि काम तो है बच्चों लेकिन इसमें बहुत प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है बच्चों. कंपनी इसका भी पेमेंट करता है, कंपनी तो 8 घंटे की सैलरी दे रहा है बच्चों, और वर्कर ने कितना काम किया बच्चों 7 घंटे काम किया, 1 घंटे तो आइडल टाइम था. तो आइडल टाइम मतलब रेस्ट टाइम, लंच टाइम, टी ब्रेक, ऐसा बोलते हैं बच्चों आइडल टाइम बच्चों. एंड ओटी मतलब बच्चों ओवर टाइम. ओवर टाइम मतलब एक्स्ट्रा वर्क. आपका शेड्यूल टाइम था बच्चों 8 घंटा, 8 घंटे से आप ज्यादा काम कर रहे हैं वाला ओवर टाइम. तो तुम्हारे बच्चों तो इसलिए इम्पोर्टेंट वर्ड होता है आइडल टाइम. आइडल टाइम मतलब रेस्ट टाइम बच्चों, रेस्ट पावर्स. ईच एवरी कंपनी में जितना भी टाइम को रेस्ट के लिए एम्प्लॉय को रहता है बच्चों, तो जनरली बच्चों प्राइवेट कंपनी में लेके बच्चों तो लंच टाइम तो रहता है बच्चों, अपने आप क्या 1 घंटे का हो सकता है बच्चों. कुछ कंपनी आगे खास जिससे गवर्नमेंट कंपनी है बच्चों तो एक तो लोग को 2 टाइम टी टाइम रहता है बच्चों. मॉर्निंग में 11 o'clock टी जाएगा, साथ ही शाम को 3 बजे चाहे बच्चों, तो 10 मिनट का ब्रेक बच्चों, फिर लंच टाइम बच्चों. तो दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम बच्चों. So time keeping means the keeping a record of attendance of a worker and the time spent by them in the actual work, idle time and the overtime. अब एक्चुअल वर्क का वर्ड में क्या बोल सकते हैं टेक्निकल वर्ड में प्रोडक्टिव टाइम. प्रोडक्टिव मतलब बच्चों जिसका कुछ फायदा हो रहा, वर्कर कुछ काम कर रहे हैं. और आइडल टाइम मतलब बच्चों अनप्रोडक्टिव, सैलरी चालू है लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसका अनप्रोडक्टिव बच्चा. ठीक है, तो एक्चुअल हाउ मच आवर्स इज स्पेंड ऑन द एक्चुअल वर्क, दैट इज प्रोडक्टिव वर्क, and how much time is spent on the idle time, which is unproductive बच्चों, इसका कोई बेनिफिट नहीं है बच्चों. ओके, out of the standard time there are some amount of time work are not doing the work. yes, हम बोलते हैं 8 घंटे ड्यूटी स्टैंडर्ड टाइम है ना बच्चों. लेकिन कोई भी कंपनी में 4 घंटे ड्यूटी तो 8 घंटा पूरा वर्क है. मतलब क्लासेज 2 घंटे का क्लासेज है, तो 2 घंटे का क्लास में क्या 2 घंटा पर 120 मिनट वर्क टीचर हो जाएगा तो नो. ओके, ऑर्डर टू 2 घंटे के टाइम में जो 5 मिनट सब वाले में लग गया या बच्चे को लेकर आए तो बच्चों फिर सेटल डाउन होने में बच्चों, फिर बीच में कोई बच्चे ने कमेंट मार दिया या कोई जो बोल दिया तो हाँ हाँ एक चल रहा बच्चों, तो सब टाइम ही तो माइनस करेंगे.
ठीक है बच्चों, ये सब माइनस करके मान पड़ा बच्चों 120 मिनट आवर्स में 120 मिनट में आप नॉर्मली 100 मिनट या 80-90 मिनट्स यू आर वर्किंग ओनली बच्चों, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल टाइम. So out of the standard time, there are some amount of time work are not doing. The work that is the rest pause. Rest pause बच्चों, lunch, tea breaks, etc. It is called idle time. Okay बच्चों, what is idle time बच्चों? Idle time is lunch break, tea time. This is called idle time. That is rest pause बच्चों. लेकिन क्या बच्चों, कंपनी सैलरी 7 घंटे का देगा कि 8 घंटे का देगा बच्चों? सैलरी पूरे 8 घंटे का. जब 8 घंटे बोले बच्चों तो उसमें 7 वर्क आवर भी हो गया बच्चों और ये 1 आवर भी हो गया बच्चों. इसका मतलब क्या बच्चों, कंपनी को डबल लॉस है. क्यों बच्चों? ये 7 घंटे तो आप काम कर रहे हो बच्चों, यू आर एक्चुअली वर्किंग, जैसे प्रोडक्टिव टाइम बच्चों. तो ठीक है, आप काम कर रहे हो, उसके बदले में पैसे दे रहे हो बच्चों, बराबर होती है. यहाँ बच्चों 1 घंटा कंपनी में आके काम भी नहीं कर रहे हो, फिर भी पैसे ले, बिना काम के पैसे ले रहे हो बच्चों. वर्कर आर एम्प्लॉइज आर 1 घंटे काम बंद नहीं किए आपने, ठीक है, आपका सैलरी तो चालू बच्चों. नो वर्क बट स्टिल देयर इज अ पेमेंट, यानी फ्री में ये टाइम का पैसा मिल रहा है आपको. आपको पता है एम्प्लॉइज को सर कैसा बोल रहे हैं आप हमेशा एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो कि आपके पास आप लोग में से भी कोई एम्प्लॉयर बना बाद में तब ऐसा नहीं कि आप जिंदगी में खाली किसी के अंडर काम ही करोगे बच्चों. आप भी कहीं जॉब आपके भी अंडर कुछ चाहते कोई काम करे बच्चों, यू आर एम्प्लॉयर then think that okay this will balance. So what is idle time बच्चों? Idle time means payment is there but there is no work. Unproductive time बच्चों. Unproductive time मतलब बच्चों काम कुछ नहीं होता उस टाइम बच्चों. इसमें बच्चों लंच टाइम, टी ब्रेक, रेस्ट पॉज, ओके. और भी देख लो बच्चों, मान लो कभी काम करते हैं तो वर्कर का छोटा मोटा इंजरी हो गया या एक्सीडेंट हो गया कुछ बच्चों, तो उसको पूरा 1 घंटा रेस्ट रूम में बैठा देते थे, आराम करता. तो क्या कंपनी उस दिन का सैलरी उसका काट देगा? सैलरी तो चल रहेगा बच्चों. ये 3 ज़्यादा 3 घंटे वाला आइडल टाइम बच्चों, ओके. बट सैलरी एंड वेजेस आर स्टिल टू बी पेड. Hence it is a double loss for the business because it paid them for the no work or no performance by the employee. Of course, ऐसे में double loss बच्चों, क्योंकि आपको पैसा भी दे रहा हूँ लेकिन आपसे काम नहीं लगा, काम नहीं हुआ बच्चों, 2 लॉस हुआ, प्लस मेरा पैसा भी जा रहा है बच्चों. नो वर्क नो पेमेंट तो ठीक था बच्चों. नो वर्क बट पेमेंट, चलिए डबल लॉस. नो वर्क एक काम नहीं होने वाला लॉस बच्चों, और प्लस मैं जैसे पैसे भी दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, चलिए डबल लॉस बच्चों. एंड ओवर टाइम मतलब बच्चों एक्स्ट्रा वर्क देन योर शेड्यूल और स्टैंडर्ड्स. आपका स्टैंडर्ड टाइम था बच्चों 8 घंटे, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हो तो जब ओवर टाइम बच्चों. So ओवर टाइम मीन्स द वर्क डन by the worker beyond his normal working hours. So by the worker the factory act as a 1948. Yes. आपको जितना नॉर्मल टाइम मिला बच्चों, जो स्टैंडर्ड टाइम उससे ज़्यादा जब काम करते हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओवर टाइम बच्चों. Every worker required to work not more than 9 hours a day or 48 hours in a week. Yes, bachcho, as per the Indian Labour Act 1948, Indian Labour Act 1948 bachcho, भारतीय मजदूर अधिनियम एक्ट 1948, एक लेबर एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम ना करे अ डे और 48 आवर्स अ वीक. मजाक बोल रहा बच्चों, इन जगह मजाक है तो मजाक होता है बच्चों. यहाँ थूकना मना है, पब्लिक का एकदम मना में थूकता है ताकि अगले दिन से थूके. हमारे देश में कानून ऐसे बच्चों. अब बच्चों एक दिन में आप 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते नॉर्मल टाइम बच्चों. लेकिन आप अपने पापा को बोलो जो अभी ऑफिशियली काम करते हैं बच्चों, तो उनसे पूछना 8 से 8 ड्यूटी होते हैं, सुबह 8 से रात को 8. 8 से 8 कितना हुआ? 12 घंटा हो गया. 6 से 6 12 घंटा गया.
10 बजे से 10 बजे 12 घंटा में क्या करना होगा भाई? कानून की किताब में लिखा है एक वर्कर को खाली 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता दिन में, मतलब नॉर्मल बचा दो, ओवर टाइम करा दो, अलग एक्स्ट्रा करा दो, लेकिन आप 12 घंटा बचो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर बच्चों, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज। इंडिया में बच्चों 80% वर्क जो है अनऑर्गेनाइज, और अनऑर्गेनाइज जिस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों। तो बच्चों तो दैट इज अनऑर्गेनाइज। और बच्चों वीक में आप 48 आवर्स 48 आवर्स कितना, तो 9 घंटे बच्चों तो 5 डे ना, 9 4 45 यानी 5 दिन बच्चों, 5 डेज और सैटरडे का हाफ डे बच्चों, तो सैटरडे का हाफ डे का 3 घंटे, तो 48 आवर्स हो। इसका मतलब संडे छुट्टी होना चाहिए और खाली आपको 48 आवर्स एक वीक में काम होना चाहिए। पर हमारे ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें नो संडे, उनके कैलेंडर में संडे होता है ना बच्चों, तो जो 12 घंटे रोज काम करते हैं और पूरे 7 दिन में 84 आवर्स काम ऑलमोस्ट डबल हो गया बच्चों। ये हमारे देश में लेबर का शोषण है बच्चों, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर से ज्यादा काम करवा के लेते हैं कानून से ज्यादा। So what is given बच्चों? The worker required to work not more than 9 hours a day or 48 hours in a week. If due to urgent work, अभी तो स्टैंडर्ड था बच्चों, अगर मान लो कंपनी को बहुत अर्जेंट है तो आप एक्स्ट्रा काम करोगे, एक्स्ट्रा काम तो ओटी, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। If due to the urgent work are doing the excess of the prescribed limit, it is called OT। ओवर टाइम मतलब बच्चों आपका जो शेड्यूल टाइम है बच्चों का उससे ज्यादा काम करते हो तो इसको हम लोग कॉलेज में बच्चों एक्स्ट्रा लेक्चर। अब एक्स्ट्रा लेक्चर में तो पोर्शन पूरा नहीं हुआ बच्चों आपके नॉर्मल लेक्चर में, तो आप एक्स्ट्रा लेक्चर लेते हो। ऐसे कॉलेज में तो नॉर्मल लेक्चर बैठते हैं बच्चों साथ, तो एक्स्ट्रा क्या बैठेगी? स्कूल में होता था बच्चों, हम लोग के स्कूल में तो होता था बच्चों पोर्शन नहीं पूरा, संडे को बुला के एक्स्ट्रा क्लास लेते थे एक्स्ट्रा, या आफ्टरनून का स्कूल होता था तो मॉर्निंग में 10 बजे एक्स्ट्रा लेते थे, एक्स्ट्रा क्लास सेम थी बच्चों, एक्स्ट्रा वर्क। सो ओटी रेट, अब उसमें बच्चों ओटी का जो ओवर टाइम होता है बच्चों उसका रेट अलग होता है बच्चों। ओवर टाइम में बच्चों बोलते हैं नॉर्मली तो आप 4 घंटे एक्स्ट्रा किया बच्चों तो फुल डे का सैलरी मिलता है बच्चों। तो ओवर टाइम का जो रेट रहेगा बच्चों आपके नॉर्मल रेट वेजेस का सैलरी से ज़्यादा रहेगा बच्चों। तो ओटी का रेट जो होता है बच्चों, ओटी रेट इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस नॉर्मल वेज रेट प्लस एक्स्ट्रा रेट वेज रेट। अभी क्या मतलब होता है बच्चों, अगर नॉर्मल वेज रेट मान लो आपको 100 रुपये पर आवर है बच्चों, 50 रुपये पर आवर, 50 1 घंटे का पगार मिलता है बच्चों। तो वो टाइम में क्या आएगा 50 रुपीज प्लस 20% मान लो एक्स्ट्रा वेज रेट, तो 50 और 20% 50 का 20% 10 रुपीज। इसका मतलब जो 40 का कितना सैलरी है आपको 60 रुपये पर घंटे। तो आपका जो नॉर्मल सैलरी रेट रहेगा बच्चे उसके कंपेयर में 40 का रेट बहुत ज़्यादा रहेगा बच्चों। बच्चों इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव टाइम मतलब बच्चों वर्क इज वर्किंग समथिंग, ओके, अनप्रोडक्टिव मतलब बच्चों सैलरी इज देयर कंटिन्यू बट देयर इज नो पेमेंट, सॉरी देयर पेमेंट इज देयर बट नो वर्क, इट इज कॉल्ड आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब जो लंच टाइम, टी ब्रेक, ये सब बच्चों आइडल टाइम। नाम में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू आइडल टाइम मतलब डबल लॉस। क्यों डबल लॉस बच्चों? एक हाथ से सैलरी देना पड़ रहा है बच्चों, दूसरे हाथ से कोई काम ही नहीं आ रहा है बच्चों। नो वर्क बट पेमेंट इज देयर, बिना काम के पैसे दे रहे हो, इसमें डबल लॉस। ठीक है बच्चों। और क्या रूल है बच्चों हमारे इंडियन लेबर एक्ट में 1948 में 9 आवर्स अ डे इज ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्कर एंड 48 आवर्स इन अ वीक। एक हफ्ते में 48 आवर्स और एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो उसको ओटी ओवर टाइम। और ओवर टाइम का सैलरी क्या होगा बच्चों? आपका नॉर्मल वेजेस रेट प्लस एक्स्ट्रा वेजेस। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों तकरीबन फॉर्मेट है बच्चों, बड़े फॉर्मेट बाहर करना ऐसा नहीं बच्चों, ओके, एकदम पूरा डिक्ट बाहर मतलब बच्चों ये ध्यान रखना अपने को,
उसी सीक्वेंस में लिखना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों। ओके, पहले ध्यान रखना है। पहले देखते हैं, बाद में बताता हूँ बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट मतलब वाट बच्चों। से एग्जाम्पल बच्चों, किसी एम्प्लॉय को 400 रुपये रोज़ का सैलरी मिल रहा है बच्चों, 400 रुपये बच्चों रोज़ का सैलरी है, मीन्स एवरीडे सैलरी 400। से एग्जाम्पल डेली सैलरी और वेजेस बच्चों 400 है। ठीक है बच्चों, 400 रुपये रोज़ का बच्चों। अभी 400 रुपीज़ बच्चों डेली है, राइट। कितने घंटा डेली बच्चों? 8 आवर्स ना नॉर्मली। अब 8 आवर्स का डेली बच्चों, तो आप बोलोगे सर 400 रुपये रोज़ का है, 8 घंटा मतलब 50 रुपये पर आवर बच्चों। बट मैं बोलूँगा बच्चों 50 रुपये पर आवर नहीं, ज़्यादा है। हाँ देखो सर 40 कैलकुलेटर भी किया हूँ सर, कैलकुलेटर भी किया हूँ। 400/8 तो 50। मैं इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि 8 घंटे आपने डिवाइड कर दिया बच्चों, यानी हर घंटे का 50 रुपये। लेकिन क्या लेबर 8 घंटा पूरा काम कर रहा है क्या? इज़ द 8 आवर्स फुल होल वर्किंग देयर? नो, देयर इज अ लंच टाइम, टी टाइम, वो सब ब्रेक भी तो है बच्चों। इसका मतलब उसमें कुछ टाइम है जो जहाँ पे आप काम नहीं कर रहे ना बच्चों। सो दैट मीन्स बच्चों लेट टेक द 7 आवर्स यूज योर प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम है बच्चों। बाकी का 1 आवर क्या है बच्चों? आइडल टाइम है। आइडल टाइम को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? टेल अनप्रोडक्टिव बच्चों। अनप्रोडक्टिव मतलब बच्चों यानी वो टाइम का पगार चालू है लेकिन काम नहीं है बच्चों। तो इसका तो बच्चों इसका दैट मीन ये मतलब बच्चों हमने 400 रुपये पे किया आपको 7 घंटे के लिए ना बच्चों, क्योंकि वो 1 घंटा तो बच्चों आपने काम किया ही नहीं है। तो एक्चुअली 7 आवर का ही पेमेंट 400 हो जा रहा है बच्चों आपका। ओके बच्चों, इट विद 400/7 आप डिवाइड करो बच्चों, तो आपको 50 से ज़्यादा आएगा कि नहीं? चेक करो। 7 5 या 35, 5 7 7 या 57 हो गया, दैट इज अराउंड 7 रुपीज़ एक्स्ट्रा और है बच्चों। सो दैट इज कॉल्ड बच्चों इफेक्ट। इसको बोलते हैं बच्चों इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। हर घंटे का इफेक्टिव आवरली कॉस्ट कितना बच्चों? 57 रुपीज़ है। ऐसा नॉर्मली सोचने के लिए बोलेंगे तो पर घंटे का आपको 50 रुपये मिल रहा है बच्चों, लेकिन आपको कंपनी बच्चों इफेक्टिवली आवरली कॉस्ट बच्चों आपने जितना प्रोडक्टिव काम किया है उसके हिसाब से पर घंटे की सैलरी कितना बच्चों? 57 रुपीज़ है बच्चों। बस बच्चों यही है कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट मतलब प्रोडक्टिव आवरली कॉस्ट बच्चों। प्रोडक्टिव आवरली कॉस्ट, आवरली मतलब बच्चों घंटे का, 1 घंटे का प्रोडक्टिव कॉस्ट कितना है बच्चों। तो कैसे करेंगे बच्चों? लेबर लोग का टोटल से पेमेंट निकालो। अब बच्चों बेसिक पे उनका जो बेसिक सैलरी बच्चों प्लस DA क्या था बच्चों? डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। ज़्यादातर एक गवर्नमेंट कंपनी को मिलता है, प्राइवेट वाले में कुछ बड़े जो पोस्ट है बच्चों उसको मिलता रहेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा वैसे वैसे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड DA। बोनस तो मालूम बच्चों हम लोगों को। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF बच्चों। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बच्चों टैक्स पे पड़े बच्चों हम लोगों ने। प्रोविडेंट फंड PF मतलब प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय का PF है बच्चों और उस पर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है बच्चों। तो एम्प्लॉय के लिए तो फ़ायदा ही है बच्चों। HRA क्या है बच्चों? HRA हाउस रेंट अलावेंस बच्चों। हाउस रेंट अलावेंस, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया बच्चों, उसका पूरा भाड़ा। CT कॉम्पनसेटरी अलावेंस बच्चों, ये क्या होता है बच्चों? से आपका पोस्टिंग बच्चों मुंबई में हुआ, राइट बच्चों। अब मुंबई में आपने पोस्टिंग कर लिया, जॉब से लेकर मुंबई की वजह सुन के बच्चों आपने काम ले लिया। 4-5 महीना होने के बाद बच्चों कंपनी बोल रहा है कि भाई आपको पुणे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब बच्चों पुणे शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पे आपको अपनी फैमिली लेके नहीं जाने मिलेगा, क्योंकि वहाँ फैमिली के लिए रहने की जगह नहीं है। तो आप अपने आप खुद जाओगे बच्चों, अपने परिवार से दूर आप दूसरे सिटी में जा रहे हो बच्चों, तो उसके लिए कंपनी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा बच्चों, एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन देगा। CT कॉम्पनसेटरी अलावेंस बच्चों, कॉम्पनसेशन बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द अदर सिटी बच्चों। ओके। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ESIC क्या होता है बच्चों? ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कामगार हॉस्पिटल सुने बच्चों? कामगार हॉस्पिटल MIDC सुने बच्चों? कामगार हॉस्पिटल, बस वही
तो बहुत सारे एम्प्लॉय को बच्चों कंपनी ESI से बना के देता है। अगर कुछ भी बीमारी होता है बच्चों या फैमिली के मेम्बर बीमार पड़ते हैं तो लोग उस कार्ड को दिखा के उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं बच्चों। अब पूरा बॉम्बे वाले बच्चों ये कामगार में नहीं आते, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, मैं एक एग्जांपल अपने पाइपलाइन के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बच्चों, ओके। और लीव सैलरी बच्चों, किसी महीना दिन आपको छुट्टी मिला था लेकिन फिर भी आपने छुट्टी लेने काम किया बच्चों, 2 दिन का पगार बच्चों, ये सब ऐड करो बच्चों, यू विल गेट अ टोटल लेबर कॉस्ट बच्चों, ठीक है बच्चों। दिस ऑल लेबर को जो भी पेमेंट होता है कंपनी तरफ से सब ऐड करना है बच्चों, ठीक बच्चों। एंड सेकेंड पॉइंट है बच्चों इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, एनुअल वर्किंग आवर्स बच्चों, कितना अपने साल में कितने घंटे काम करते हो बच्चों, एनुअल है बच्चों, एनुअल वर्किंग आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल आवर्स। मान लो बच्चों इन अ ईयर यू आर वर्किंग 2400 आवर्स बच्चों, इन अ ईयर यू आर वर्किंग 2400 आवर्स बच्चों। उसमें से सपोज आपका 350 आवर्स क्या था बच्चों, आइडल टाइम था, 350 घंटे आपने कोई काम नहीं किया बच्चों, मतलब बाकी का बच्चों कितना आएगा 2050 आवर्स। ये क्या बच्चों आपका इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है बच्चों। आउट ऑफ द टोटल वर्क में से कितना घंटा आपका आइडल टाइम बच्चों, उसको लेस कर दो, तो एनुअल वर्किंग आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम बच्चों, ये मिल गया इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। अब बच्चों इफेक्टिव आवरली के कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग आवर्स बच्चों। तो टोटल लेबर कॉस्ट में इससे डिवाइड करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा बच्चों इफेक्टिव आवरली कॉस्ट क्या है। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट के बच्चों प्रोडक्टिव आवरली कॉस्ट बच्चों। तो हमारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल लेबर लोग की सैलरी कितना पेमेंट हुआ बच्चों उसको ऐड कर लो, ओके बच्चों। एंड इम्पॉर्टेंट है बच्चों कितने टाइम आवर काम किया वो इम्पोर्टेंट नहीं बच्चों, उसमें से कितना आपका आइडल टाइम है, आइडल टाइम मतलब बच्चों रेस्ट पाउज, उसको माइनस करो बच्चों। बाकी का जो बैलेंस बचा वही आपका इफेक्टिव टाइम है, यही आपका प्रोडक्टिव आवर्स है बच्चों। इतना घंटा ही आपने एक्चुअली काम किया है, प्रोडक्टिव आवर्स। तो टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, ठीक, डिवाइड कर दिए तो आ गया इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। बच्चों तो ये था बच्चों फॉर्मेट था, इसको सीक्वेंस में बाहर करना कोई ज़रूरी नहीं बच्चों, ये आगे पीछे लिख सकते हो आप, बोनस इधर आया, डीए बाद में आया, बट ये ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या ऐड करना है बच्चों। बेसिक पे प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस बोनस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, HRA बच्चों, CT कॉम्पनसेटरी अलावेंस, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू ESIC एंड लीव सैलरी। ऑल द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉय विल बी एडेड। ऐड हो गया तो आ गया बच्चों टोटल लेबर कॉस्ट। उसके बाद बच्चों एनुअल वर्किंग आवर्स, उसमें से आइडल टाइम माइनस कर दो बच्चों तो आ जाएगा इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, यू गेट इफेक्टिव आवरली कॉस्ट बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस पर रिलेटेड एक सम रहेगा बच्चों, ओके। तो इसलिए आप इसको याद करोगे बच्चों, और ये फॉर्मूला है इफेक्टिव आवरली कॉस्ट इक्वल टू टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव वर्किंग आवर्स बच्चों।